السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں لاسٹ پارٹ آف تکمیل حیات سیزن 2۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو ناول پسند آیا ہو اور اینڈنگ بھی اچھی ہو اور ہم سب کو پسند آئے۔ تو بغیر دیر کے اسٹارٹ کریں۔ لیٹی رہو مون، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ نور رائنا کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ ایہام کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد رونے لگ پڑتا تھا۔ اب بھی رات کے 2 بجے اس کا رونا شروع ہو چکا تھا، جبکہ اس کے برعکس ایہان سکون سے یسال آغا شاہ والی سائیڈ اس کے سینے سے لگا سو رہا تھا، جبکہ ایہام کو نور اپنے پاس لٹاتی تھی۔ یسال اسے بھوک لگی ہوگی، مجھے اسے فیڈ کروانا پڑے گا، نور سہارے سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی، اب کچی نیند کھلنے کے سبب اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ یسال نے سر اٹھاتے ایک نگاہ ایہان پر ڈالی جو پرسکون سا تھا۔ وہ بس رات کو دوبارہ اٹھتا تھا، ایک بار دودھ کے لیے اور ایک بار کپڑے خراب ہونے پر، مگر ایہام آغا شاہ کی ساری رات اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے گزرتی تھی۔ یسال نے اٹھ کر ایہام آغا شاہ کو اپنی گود میں بھرا۔ سائیڈ لیمپ آن کرتے وہ اب غور سے اسے گھور رہا تھا، جس کی نیلی خوبصورت آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ سالے، تو رو رہا ہے تو پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں؟ وہ مشکوک نظر سے اسے 3-4 دن کے بچے کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ ایہام اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اپنے باپ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ساری باتیں اسے سمجھ آ رہی ہوں۔ یسال آغا شاہ کے متفکر چہرے کو دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ مون، یہ مسکرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ جان بوجھ کر ہماری نیند خراب کرتا ہے۔ یسال نے فوراً سے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ یسال، یہ رو رہا ہے، آپ کیسے ایک معصوم بچے پر الزام لگا سکتے ہیں؟ نور شال لپیٹتے اسے یسال آغا شاہ سے لے چکی تھی، جو ماں کی گود میں آتے ہی چپ کر گیا تھا۔ ماما کی جان، بھوک لگی ہے میرے بیٹے کو؟ نور اس کی پیشانی پیار سے چومتے پوچھ رہی تھی، جس پر ایہام آغا شاہ کھلکھلایا تھا۔ یسال لب بھینچ کر اسے دیکھ رہا تھا، جو ماں کی گود میں جاتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ اسے بستر پر لٹاتے نور نے ایہان کو اٹھایا تھا، جو اب تک پرسکون سو رہا تھا۔ وہ صبح 4 بجے کے قریب اٹھتا تھا، اس لیے اسے اچھے سے کمبل میں لپیٹتے اس کی پیشانی چومتے وہ اسے یسال کی سائیڈ پر لٹا گئی اور خود ایہام کو سینے سے لگاتے آنکھیں موندی تھی۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے اسے پیٹ میں درد ہے، محمل گود میں اٹھائے ایہان کو گھورتا دیکھ فکر مندی سے بولی تھی۔ پریشان تو نور بھی تھی، کیونکہ ایہام آغا شاہ کی نسبت ایہان کافی معصوم بچہ تھا۔ وہ صرف بھوک لگنے پر روتا تھا، ورنہ سارا دن وہ بیڈ پر بھی خاموشی سے پڑا رہتا تھا۔ مگر آج جانے کیا ہوا تھا، وہ صبح سے روئے جا رہا تھا۔ یسال کسی کام کے سلسلے میں صبح سے نکلا ہوا تھا تو محمل نور کے پاس ہی تھی، کیونکہ دونوں بچوں کو اکیلے سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ پھپھو، میں نے دوا پلائی ہے اسے، پھر بھی یہ روئے جا رہا ہے۔ نور کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کافی پریشان تھی ایہان کو لے کر۔ اس نے کبھی ماں کو تنگ نہیں کیا تھا اور اب اس کا رونا نور سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نور بیٹا، ادھر دو اسے، میں اٹھاؤں؟ روپ، جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے نور سے ایہان کو لیا تھا۔ رملہ خاموش بت بنی بیٹھی تھی، جیسے یہ سب باتیں اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں۔ اس حادثے کے بعد بسام اور رملہ ہمیشہ کے لیے حویلی شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ اب بسام رملہ کو اکیلے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ حویلی میں آنے کے بعد بھی رملہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ طاہرہ بیگم کی موت اور اپنے بچے کو کھونے کے بعد وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، ایسے جیسے ایک زندہ لاش ہو۔ یہ ایسے چپ نہیں کرے گا۔ نور بیٹا، اسے کمرے میں لے جاؤ، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ روپ کی گود میں جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی رو رہا تھا، جبکہ ایہام دادی کی گود میں مزے سے سو رہا تھا، کیونکہ رات اس کا پھر سے ماں باپ کو جگانے کا پلان تھا۔ نور سر اس بات میں ہلاتے ایہان کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کافی دیر تک اسے چپ کروانے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ ایہان کو بستر پر لٹاتے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ ایہان کے رونے کی آواز سنتے وہ کمرے کے باہر سے گزرتے نہ چاہتے ہوئے بھی رکی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ شش! وہ جھٹ سے اسے اٹھاتے اس کا چہرہ نرمی سے چپکتے بولی۔ اس کی آواز اور سبز آنکھیں دیکھ ایہان روتے روتے چپ ہوا تھا۔ اس کا سفید رنگ شدت سے رونے کے سبب سرخیاں چھلکا رہا تھا۔ رملہ بے ساختہ اس ننھے وجود کی حرکت پر مسکرائی تھی۔ وہ اسے کافی غور سے دیکھ رہا تھا کہ اب رونا بھول چکا تھا۔
रमला पहली बार इसे देख रही थी, अपने दादा की कॉपी थी जो हूबहू अपने दादा की कॉपी था। "आप तो बहुत प्यारे हो छोटे आका।" इसकी आवाज़ पुरजोश हुई थी और इन सब मुस्कुराती आंखों को देख एहान खिलखिलाया था। इसकी खिलखिलाहट पर रमला भी इसके साथ हंस दी थी। टॉवल से मुंह पोंछते नूर सामने का मंजर देख बेसाख्ता ही टिटकी थी। एहान आगा शाह बिल्कुल भी रो नहीं रहा था और इतने अरसे के बाद इसने रमला को मुस्कुराते हुए देखा था। "अरे वाह रमला, ये तुम्हारी गोद में जाते ही चुप हो गया। सुबह से इसने तंग किया है मुझे। शायद बाबा को मिस कर रहा है। वो सुबह इन दोनों के उठने से पहले चले गए थे, शायद इसलिए।" नूर सर झटकते हुए लापरवाही से बोली थी। रमला की मुस्कुराहट सिमटी। "ये रो रहा था, बस इसलिए मैंने उठाया। ये लो संभालो इसे।" वो जल्दी से वजाहत देते एहान को वापस इसकी गोद में देते जल्दी से कमरे से बाहर बाहर निकली थी। नूर उलझन से इसकी पुश्त को देखते अब एहान की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो अब खामोश माँ को देख रहा था। "तो क्या आप फुप्पो की गोद में जाने के लिए रो रहे थे मेरी जान?" वो इसके गाल चूमते सुकून भरी सांस भरते बोली थी। इसका चुप होना ही इसके लिए बहुत बड़ी गनीमत थी। "क्या देख रहे हैं खान?" वो अभी शावर लेकर रूम में आई थी जब सामने ही साहिर खानज़ादा बड़ी गौर से अपनी प्रिंसेस को देख रहा था। इसकी तवज्जो गुलरुख में पाते वो इसके शाने पर हाथ रखते प्यार से मुस्तफसर हुई। "देख रहा हूँ, ये बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल मासूम सी परी।" गुलरुख के नन्हे हाथ लबों से लगाते वो मुस्कुराता हुआ बोला था, जबकि बाप के लम्स पर बेड पर लेटी गुलरुख की शहद रंग आंखें चमकी थीं। इसके नैन नकूश बाप जैसे थे, मगर वो बिल्कुल माँ जैसी थी, खामोश और मासूम सी। "मगर इसके नकूश तो आप जैसे हैं खान," ज़ेहले ने लब दबाए कहा था। वो गुजरता था क्योंकि नूर रैना के बाद गुलरुख अपने दादा की लाडली थी। हम्म। ज़रार पाशा खान की जान अब इस छोटी सी परी में बसने लगी थी, जो अपने माँ बाप से ज़्यादा ज़रार पाशा खान से अटैच थी। "मैं सोच रहा हूँ हमें एक और बेबी प्लान कर लेना चाहिए।" इसका हाथ पकड़ते वो इसे गोद में गिरा चुका था। "खान, होश में हैं आप?" गुलरुख अभी छोटी सी है। जहले की आंखें बाहर को उबली थीं, जबकि इसका हवाइयाँ उड़ता चेहरा देख साहिर खानज़ादा ने इसे मज़ीद करीब किया था। "तो अच्छी बात है, हम हमारी टीम जल्दी कंप्लीट करेंगे तो सब बच्चे एक साथ बड़े होंगे।" वो इसके भीगे बालों में चेहरा छुपाते मखमूर से लहजे में बोला था। इसके हाथों की गर्दिश और लम्स पर ज़ेहले खान जी जान से लरज़ी थी। ज़ेहले लब भींचे बेबसी से इसके लम्स को महसूस कर रही थी। जानती थी इसे रोकने टोकने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा वो इसी पर गुस्सा होगा। माँ गुलरुख ज़ोर से रोई थी। साहिर खानज़ादा हड़बड़ा कर रह गया। ज़ेहले तेज़ी से इसकी गोद से उतरी थी। गुल को सीने से लगाते वो इसे चुप करवाने लगी, जबकि साहिर खानज़ादा गहरी सांस भरते बेड पर लेटते आंखें मूंद गया था। "छोड़ो मुझे घटिया इंसान!" रहबर शाह इसे घसीटते हुए बेदर्दी से इसी के बेडरूम में ले गया था, जब रमला चीखते हुए इसके हाथों पर मुक्के बरसाते चली गई चिल्लाई थी। रहबर शाह इसकी हरकत पर गुस्से से जबड़े भींचते इसे बालों से जकड़ते बेड पर धक्का दे गया था। अचानक इसके यूं धकेलने पर वो बेड के कोने से टकराई थी। पेट में दर्द की तेज लहर सी उठी थी। वो दर्द की शिद्दत से सुस्त चेहरे समेत चीखते हुए अपना पेट जकड़ गई थी। देखो, मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ।" सब खूबसूरत आंखों में आंसू लिए वो दर्द की शिद्दत से जर्द चेहरे समेत बोली थी। "ये तो और भी अच्छा हुआ। पहले तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को नोचूंगा मैं, और फिर तुम्हारे इस बदन से तुम्हारी रूह खींचूंगा। देखते हैं कैसे तुम्हारा वो यार तुम्हें बेइज्जत देख कर जीते जी मरेगा।" वो खबासत से कहा लगाते आगे बढ़ा था। कमीज़ के बटन खोलते इसके हवस भरी जहरीली निगाहें रमला आलम शाह के खूबसूरत बदन पर थीं, जो दुपट्टे से आजिज था। रहबर शाह ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं था। इसका यहाँ आने का मतलब सिर्फ तालिया को बचाना था, मगर अब रमला ने इसकी गैरत को ललकारा था। इसे सबक सिखाए बगैर वो हरगिज़ नहीं छोड़ सकता था। रमला बेड पर पीछे को खिसकी थी, जिसे टांग से जकड़ते वो वापस खींचते बेड पर चढ़ा था, मगर रमला इसे इसके काबू में नहीं आ पा रही थी। वो लाख जतन करते बिलाखिर इसके पेट पर टांग से वार कर गया था। रमला की दिलखराश चीखें पूरे घर में गूंजी थी। माजिद भाग कर अंदर दाखिल हुआ था। सामने का मंजर देख वो घबरा कर रहबर शाह की तरफ बढ़ा। "साईं, ये क्या कर दिया? ये पुलिस वाला हमें छोड़ेगा नहीं।" माजिद की आवाज़ गले में अटकी थी। वो वो आएगा तो इसे भी देख लूँगा। पहले इस कुतिया के कपड़े फाड़।"
रहबर शाह फूलते तनफ़ुस समेत बोला तो माजिद ने खुश खलक को तर करते बेड से नीचे नीम बेहोशी की हालत में पड़ी रमला को देखा। शक्ल क्या देख रहा है, जो कहा है वो कर। रहबर शाह इसे धकेलते हुए धाड़ा था। मुझे लगता है यसाल आगा शाह और वो पुलिस वाला आ गया है। बाहर से आती गोलियों की तेज़ आवाज़ पर माजिद बुरी तरह से घबरा कर कहता बाहर को भागा था। रहबर शाह इसके यूं बुज़दिलों की तरह भागने पर इसे गालियाँ निकालते कमरे से बाहर निकला। माजिद कहीं भी नहीं था। वो लब सख्ती से भींचते खिड़की खोलते इसने बाहर की तरफ देखा। यसाल आगा शाह के गार्ड्स हमला कर रहे थे। बदर आलम शाह भी गेट पर खड़ा था। रहबर ने जल्दी से खिड़की बंद की थी। इसके आदमी मुकाबला कर रहे थे, मगर जो हालात बन चुके थे, इन हालात में इसे भागना ही था। रहबर ने जल्दी से खिड़की बंद की थी। इसके आदमी मुकाबला कर रहे थे, मगर जो हालात बन चुके थे, उन हालात में इसे भागना ही था। दरवाजे को अच्छे से लॉक करते वो पिछले गेट की तरफ से भागा था, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक इसकी टांग पर फायर हुआ था। रहबर शाह एकदम से ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा। दरवाजे को अच्छे से लॉक करते वो पिछले गेट की तरफ भागा था, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक इसकी टांग पर फायर हुआ था। रहबर शाह एकदम से ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा। ये डबल डबल क्यों लिखा हुआ है? ये साल और बिसाम तेजी से इसकी तरफ बढ़े थे। किधर भाग रहा है कुत्ते? इसे ज़मीन से उठाते ये साल ने खींचकर इसके मुंह पर मुक्का मारा था। रहबर शाह लड़खड़ा कर पीछे को फिर से गिरा था। बिसाम तेजी से अंदर की सिमत भागा था। जाने क्यों इसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। भाभी रमला। बिसाम रज़ा अंदर दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ में इन दोनों को आवाज़ें देने लगा। जिस तरीके से रहबर शाह भाग रहा था, इसे पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, सामने ही कुर्सी पर एक तरफ को झूलती ताहिरा बेगम को देखते इसके जिस्म से जान सी निकली थी। वो बुरी तरह से लड़खड़ाया और फिर गहरी सांस भरते वो आगे बढ़ा। रमला का ख्याल आते ही वो इसे पुकारता हुआ उठा था। इसे हर जगह देखने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ था और सामने का मंजर इसे जिस्म से जान निकालने को काफ़ी था। रमला। वो घुटनों के बल झुका इसका सर उठाते अपनी गोद में रख चुका था, मगर वो बिल्कुल साकिन थी, किसी बेजान बुत की मानिंद। बदर आलम शाह जो अंदर दाखिल हुए थे, रमला को देख इनकी सांस रुक सी गई थी। वो लम्हों में भागते हुए इन तक पहुंचे थे। रमला का सर उठाते वो अपनी गोद में रख चुके थे, जबकि बिसाम रजा गुस्से से बेकाबू होते उठा था और तेज तेज कदम उठाते वो बाहर निकला। ज़मीन पर पड़े रहबर शाह को उठाते इसने पै दर पै कई मुक्के इसके मुंह पर मारे थे। इसका बिखरा हुआ रूप देख ये साल लब भींच कर पीछे होते सीने पर हाथ बांधे सामने का मंजर देखने लगा। साले घटिया हरामी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नामर्द कहेंगे। अगर तुझे लड़ने का इतना ही शौक है तो मुझसे लड़ता। औरतों पर मर्दानगी दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? वो इसके मुंह का हशर चंद ही लम्हों में बिगाड़ चुका था। इसे फर्श पर पटकते वो अब इसके सीने और पेट पर बूटों से वार कर रहा था। इसके वार इस कदर शदीद थे कि रहबर शाह दर्द से तड़पते बुरी तरह से बिलखने लगा। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी इस बीवी की वजह से ये सब हुआ है। ना वो मुझे गुस्सा दिलाती और ना ही मैं ये सब कुछ करता। रहबर शाह खून से भरे चेहरे में से इसे देखते दांत पीसते हुए बोला था। इसे मारने के लिए बिसाम का उठा हाथ कुछ लम्हों के लिए फिजा में मौलिक रह गया था। अपनी कैफियत पर काबू पाते वो गहरी सांस भरते सरस बात में हिलाते उठा था और गन निकालते इस पर तानी। बिसाम इसे शूट नहीं कर सकते हमें स्मगलिंग केस में इसकी मदद चाहिए। ये साल एक झटके से सीधा हुआ था। बिसाम की आंखों में खून उतरता देख वो घबरा कर बोला था। जरकान खान को वो वापस बुला चुका था और अभी तक वो तमाम लड़कियां महफूज नहीं हुई थीं, जिनका पता रहबर शाह और तालिया शाह को ही था। बिसाम बिना इसकी बात सुने ट्रिगर दबा चुका था। बंदूक से एक साथ ही जाने कितनी ही गोलियां निकली थीं, जो रहबर शाह के जिस्म से आर पार हुई थीं। ये साल सर्द सांस भरते अंदर की तरफ भागा था, जहाँ से बदर रमला को उठाए बाहर निकले थे। सॉरी, मगर हॉस्पिटल आने से पहले ही आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर ने एक और धमाका इस पर किया था, जो लड़खड़ा कर कुर्सी पर गिरा था। तालिया तालिया को जेल में डाल दिया गया था। ताहिरा बेगम की मौत की खबर दोनों हवेलियों में मौत की सी खामोशी तारी कर गई थी। सुबह तक साहिर और ईसा खान वापस लौट आए थे। जनाजे के सारे इंतज़ाम ये साल ने खुद देखे थे और शाम तक ताहिरा बेगम को इनके शौहर के साथ मौजूद खाली जगह पर दफना दिया गया था। ज़िंदगी कुछ ही दिनों में वापस अपनी रूटीन पर लौट आई थी। एक महीने की अनथक मेहनत के बाद बिलाखिर बिसाम रजा स्मगलिंग केस को सॉल्व कर चुका था और इस हादसे के बाद इसने रमला को बुलाया तक नहीं था। रमला इसकी बेरुखी की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिंदगी का होना ना होना इसके लिए एक बराबर था।
यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बदर की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ा था। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही खड़ा था। बदर के अचानक आने पर वो ख्यालों की दुनिया में लौटा था। रात काफ़ी हो चुकी है, जाओ और आराम करो। इसका शाना टपकते वो नरमी से बोला। वो जानता था बिसाम और रमला के बीच कुछ भी ठीक नहीं, फिर भी वो किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते थे। इसे रूम में जाता देख वो सर्द सांस भरते आसमान को देखने लगा। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ तो इसकी उठी नज़रें कुछ देर के लिए ठिठकी थीं। गहरी सांस भरते इसने बमुश्किल से खुद को कंपोज किया था। रमला जो भीगे बालों को ड्राइव कर रही थी, अचानक इसके आने पर इसने एक निगाह शीशे से इस पर डाली और फिर इसे इग्नोर करते अपना काम करने लगी। वो कई बार इससे बात करने की, इससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर चुकी थी और हर बार इनकी लड़ाई ही हुई थी, जिसके बाद इसने खुद को और बिसाम को अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया था। कहने को वो इसके साथ था, फैमिली के सामने भी वो दोनों बातचीत कर लेते थे, मगर कमरे में आते ही एक गहरी खामोशी के सिवा इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा था। रोज़ की तरह वो शावर लेने चला गया था और रमला बाल खुश करते रूम को समेटने लगी। शावर लेने के बाद अपना लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन उठाते बिसाम स्टडी रूम में चला गया था, जहाँ वो रोज़ रहता था, और रात देर बाद वो रमला के सोने के बाद लौटता था। अब भी इसके जाने पर वो बमुश्किल से अपने कांपते होठों को मींचते बेड की सिमत बढ़ गई थी। ये है क्या वैसे? वो बड़ी गौर से लिस्ट को देख रहा था जो इसकी रूठी हुई बेगम ने इसे थमाई थी। आप पढ़ लें, आप ये सब चीज़ें ले आए, मैं राज़ी हो जाऊंगी। सीने पर हाथ बांधे वो बड़ी संजीदगी से बोली थी। ईसा खान ने आईब्रो चुकाते हुए माहरूख को देखा था, जो स्याह रंग की पोशाक में रूठी रूठी सीधा इसके दिल में उतर रही थी। इसका हाथ पकड़ते वो इसे नरमी से अपने अपने करीब बिठा गया। मैं ये सब चीज़ें ले ले तो आऊँगा, वो क्या है ना मेरी छोटी सी जान, ये तुम्हारी और मेरी प्रिंसेस दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं। वो चटपटी चीज़ों की सारी लिस्ट पढ़ते, इसके गिर्द हाथ लपेटते, इसे सीने से लगाते नरमी से बोला था, साफ साफ कहें, मैं आपके लिए अहम ही नहीं हूँ। वैसे आपको क्यों लगता है प्रिंसेस होगी, हो सकता है बेबी बॉय हो। नीली खूबसूरत आंखें फैलाए वो मुस्कुराते हुए मुतजस्सिस लहजे में बोली, होने को कुछ भी हो सकता है मेरी जान, मगर मेरी ख्वाहिश है कि खुदा मुझे एक खूबसूरत नन्ही परी दे जो बिल्कुल मेरी माही की कॉपी हो। इसके गाल चूमते वो बड़े नर्म लहजे में बोला था, और मारू की सारी नाराज़गी ख़त्म होती चली गई। आपको पता था कि मुझे रेहान और रेहाम से मिलना है, बताया भी था आपको, फिर भी आप लेट आए। नाक सुकेड़ कर कहती वो इसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी थी। सॉरी मेरी जान, सुबह ले चलूँगा तुम्हें। वैसे भी मैं तुम्हारे भाई के साथ ही था, इसलिए आते हुए लेट हो गया। वो इसके बाल सहलाते सिर पर बोसा देते बोला था। वो दोनों एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर साथ ही पाए जाते थे। तो मैं क्या करूँ ईसा खान, मुझे मेरी चॉकलेट दें। वो बड़ी शान से इसके सीने जेब टटोलते इसने चॉकलेट निकाली थी, जिसे देखते ही माहरूख आगा शाह की नीली आंखें गहरी होती चली गई थीं। लाएं मुझे दें, इसने हाथ बढ़ाया। उहुँ, ऐसे नहीं, रोज़ ये चॉकलेट तुम खाती हो, आज मुझे भी इसका फ्लेवर टेस्ट करना है। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दे मैं खोल कर देती हूँ आपको भी। माही ने फ़ौरन से कहा था, मैं अपनी मर्ज़ी से खाऊंगा। वो पुरस्कारियत से बोलते एकदम से उठा, इसे नरमी से बेड पर लिटाते चॉकलेट खोली थी। इसकी हरकत पर माही की आंख फैली। ईसा खान, वो घबराहट से बोली थी, जबकि ईसा खान इसकी आवाज़ को इग्नोर करते चॉकलेट इसके चेहरे और होंठों पर लगाते, इसके हाथ मजबूती से जकड़ते इसके चेहरे पर झुका था। हाथ मजबूती से जकड़ते इसके चेहरे पर झुका था। थोड़ा सब्र करें, किसी भी ओके, राइटर बोल रही हैं, क्या है ये पीडीएफ के साथ कोई मसला हो गया? मेरी जान, इतना सुर्ख क्यों हो रहा है मेरा चैम्प? वो अभी अभी लौटा था। कोट उतार कर एक साइड पर रखते वो कॉट की तरफ बढ़ा था। एक नज़र इहाम आगा शाह पर डाली, जो मज़े से छत को घूर रहा था। इसके बाद इसकी तवज्जो इहान पर हुई थी, जिसका चेहरा काफ़ी, ये इहान इहाम क्या नाम रख दिए कि अजीब, जिसका चेहरा काफ़ी सुर्ख था। स्याह आंखें जो इसके सफ़ेद रंग पर जचती थीं, रोने के सबब सुर्ख और सूजी सूजी सी थीं। रोते रहे हैं आज सारा दिन नवाब साहब, अल्लाह जाने क्या हो गया है इसे, इतना तो ये कभी नहीं रोया।
नूर तकिए से सर उठाते अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए बोली थी। यसाल की वजह से वो अभी तक भूखी थी। मेरी छोटी सी जान को बड़ा तंग किया तुम बदमाशों ने। वो दोनों के नन्हे हाथ थामे बड़े रोबदार तरीके से बोला था। एहान आंखें फैलाए सहमी निगाहों से बाप को देख रहा था, जबकि इसके बरक्स एहाम खिलखिलाया था। इसकी नीली आंखें चमकी थीं और पहली बार वो इस कदर खुलकर खिलखिलाया था। नूर भागकर बेड से उतरी थी। इसे लगा शायद वो डर गया है, मगर कॉट के नज़दीक जाते ही सामने लेटे अपने बूढ़े बेटे की खिलखिलाहट देख इसने सर्द सांस भरी थी। माँ को देख वो दोनों टांगें हिलाते फिर से खिलखिलाया था, जिसके साथ ही इसके नरम गालों में गहरे गड़े उभरे थे। नूर आयना हैरत ज़दा सी मुंह पर हाथ रख चुकी थी। वो हूबहू बाप की कॉपी लग रहा था इस वक्त, और ये गालों में उभरते डिम्पल वो पहली बार देख रही थी। इन्हें लगा था कि डिम्पल सिर्फ एहान को है, जो इसके दाएं गाल में अक्सर जगमगाता था, मगर एहान को आज तक किसी ने मुस्कुराता नहीं देखा था। इस वजह से इसके डिम्पल पहली बार दिखे थे। यसाल, नूर ने इसे घूरा था, जो खूनख्वार नज़रों से इहाम को देख रहा था। मून, इस गधे को समझाओ, ये अपने बाप पर हंस रहा है। शहादत की उंगली उठाए वो फूलती सांसों समेत बोला था। इसे मैं नहीं समझा सकती, ये आप पर गया है, आप ही इसे संभालें। वो बेबसी से कहते इहान को उठाते इसके गाल चूमते कमरे से निकल गई थी, जबकि पीछे यसाल और इहाम आगा शाह एक दूसरे को अपनी नीली गहरी आंखों से घूर रहे थे। तुम रुको ज़रा, मैं शावर लेकर आया बस। यसाल दांत पीस कर बोला था। हाँ, मागा शाह अपने हाथ पाँव मारते अब फिर से छत को संजीदगी से घूरने लगा। दरवाज़ा नॉक होने पर इसने आंखें मसलते दरवाजे की जानिब देखा था। बिसाम दस्तक सुनकर स्टडी रूम से निकल आया था। किसी के भी आने पर वो यूं ही फौरन कमरे से निकल आता था। अब भी एक निगाह रमला पर डालते वो दरवाजे की सिमत बढ़ गया। भाभी आप सामने खड़ी नूर आयना को देख कर वो हैरत से बोला। इस टाइम वो दरवाजे पर थी, हैरान होना तो बनता था। अस्सलाम वालेकुम भाई, रमला जाग रही है क्या? नूर ने अंदर की सिम देखते पूछा। वालेकुम अस्सलाम जी, वो जाग रही है। बिसाम ने साइड होते इसे रास्ता दिया था, मगर नूर अंदर नहीं गई। वो दरअसल यसाल अभी लौटे हैं, तो ये दोनों शैतान बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। यसाल को खाना वगैरह देना है अभी, क्या आप इहान को इसे दे देंगे? क्योंकि ये दिन को भी इसके पास काफ़ी खुश हुआ था। नूर ने एहान आगा शाह को देखते हुए पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, नूर ने एहान को जल्दी से इसकी गोद में डाला। बिसाम हड़बड़ा सा गया था। इतने छोटे बच्चे को इसने पहली बार उठाया था। माथे पर परेशानी से पसीना चमकने लगा था। शुक्रिया भाई, ये इसका फीडर और कपड़े। अब मैं चलती हूँ। बिसाम हड़बड़ा सा गया। अब मैं चलती हूँ। रमला इधर आओ। रमला हैरत से इसकी चौड़ी पुश्त को घूरने लगी। आखिर वो इसे क्यों पुकार रहा था? बिस्तर से उतरते वो बिसाम के करीब पहुंची। आपके पास क्या कर रहा है? वो फीडर और शॉपर लेते अंदर रखते हैरानगी से पूछने लगी। पहले दरवाज़ा बंद करो, इसकी मामा देकर गई हैं। वो सांस रोके बोल रहा था। चेहरा बेतहाशा सुर्ख था, जैसे वो अंदर से डर रहा हो। क्या नूर देकर गई है? मगर क्यों, वो भी इस टाइम? वो बिसाम की नज़रों से कंफ्यूज हुई थी। जल्दी के चक्कर में वो दुपट्टा लेना भूल गई थी। अब इसे उलझन हुई थी। पता नहीं, बिसाम ने नज़रें फेरते कहा था। वो शदीद पजल हुआ था। इसे मुझे दें, इस ऐसे नहीं उठाते बेबी। रमला इसके बेढंगे तरीके से उठाने पर बोली। एहान की जगह अगर एहाम होता तो इस वक्त तक पूरा कमरा रो रो कर सर पर उठा देता, मगर एहान इसकी निस्बत साबिर था। रमला ने सोचते हुए सर झटका। वो पलटी ही थी कि अचानक से एहान आगा शाह ने रोना शुरू कर दिया। रमला, पकड़ो इसे। बिसाम की आवाज़ गले में फंसी थी। रमला ने मुस्कुराहट दबाते तेज़ी से एहान को अपनी गोद में लिया, जो भरपूर तरीके से रोने के बाद अब इसे देखते ही चुप हुआ था। ये सारा मंजर देखते ही बिसाम के माथे पर बल उभरे। इस छोटे से चंद माह के बच्चे का ये बर्ताव इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसने दांत पीसते हुए अपनी बीवी को देखा, जो खुले बालों में दुपट्टे से आजिज मुस्कुराकर अपने भतीजे से बातें कर रही थी। बिसाम ने गहरी सांस भरते अपनी नज़रें चुराई थीं। सर झटकते वो वापस से कमरे से जाने लगा था, जब अचानक रमला ने इसे पुकारा। बिसाम, 2 मिनट। बिसाम ने पलटते इसे सवालिया नज़रों से देखा। आप इसे संभालें प्लीज़, मैं ये ड्रेस चेंज कर लूँ। ये कपड़ा बहुत हार्ड है, इसे चुभेगा। वो नज़रें झुकाकर कहती। पलटकर रेहान आगा शाह को बेड पर लेटाते बोली थी। कुशन इसके आगे पीछे रखे थे। इसके नन्हे हाथों को चूमते वो मुस्कुराते हुए मुड़ी। एक सॉफ्ट ड्रेस निकालते वो वॉशरूम में घुस गई थी। हेलो बेबी, क्या आप मुझे जानते हो? इसके सवाल पर रेहान आगा शाह ने अपने होंठ खोले थे।
इसकी बड़ी-बड़ी सी आँखों को देख वो मुस्कुराते इसकी आँखों को चूम गया था। एक सुकून सा था जो विशाम रज़ा के पूरे वजूद में सरायत करता चला गया था। वो करीब पहुँची, ये मंज़र इसकी आँखों के गोशे नम कर चुका था। ओके चैम, आप फूफो के पास खेलो, हम सुबह मिलेंगे। वो जो हर वक़्त इन दोनों भाइयों को देखने से कतराता था, अब कल की मीटिंग तय करते वो उठा था। इसके गाल प्यार से चूमे थे। रमला इसके छोड़ी जगह पर बैठी, मगर अब एहान फिर से रोया था। जिसे सुनते ही बिसाम भागकर इस तक पहुंचा। एहान इन दोनों को देखते भीगी आंखों से चुप हो गया। आप यहीं बैठ जाएं, शायद इसे आपके साथ बातें करना अच्छा लग रहा है। रमला जरा आगे को हुई थी, जबकि बिसाम पास बैठने की बजाय बेड पर चढ़ा था। बेड पर फैल कर लेटते वो एहान आगा शाह को उठाते अपने सीने पर लेटा गया। मुझे बातें करनी है इससे। रमला इसके अंदाज पर अपनी सब आंखें फैलाकर जताने वाले अंदाज में बोली थी। ये और बात थी कि बिसाम रजा भी इन बातों में हिस्सा ले रहा था। मेरा शेर किधर है मून? वो इसे खाना सर्व कर रही थी। एहाम इसकी गोद में लेटा बालों से खेल रहा था, जबकि कमरे में एहान कहीं भी नहीं था। इसे मैं रमला के पास छोड़ आई हूँ, नूर ने संजीदगी से बताया तो यसाल को चौंका। क्यों, खैरियत? क्या तंग कर रहा था वो? इसने एक साथ जाने कितने ही सवाल पूछ डाले थे। नहीं, तंग तो नहीं कर रहा था, बस वो दिन को रमला के पास खुश था, और रमला भी बस इसलिए। यसाल ने बगौर अपनी बीवी को देखा। वो सारी रात इसके पास रहेगा? यसाल ने सवाल किया था। नूर का ध्यान खाने में ज़्यादा और यसाल में कम था। जी। यक लफ्ज़ी जवाब सुनते इसने जबड़े भींचे। करना क्या चाहती हो मून? यसाल ने होठों पर हाथ जमाए सवाल किया था। वो अच्छे से अपनी बीवी से वाकिफ़ था। अगर वो इतना बड़ा काम कर चुकी थी तो यकीनन इसके पीछे कुछ मकसद था, क्योंकि एहान बिसाम भाई और रमला को नज़दीक लाएगा। यसाल हंसा था। अच्छा, तो मेरी मून अपना बच्चा इनको देगी? यसाल को मालूम था ये बहुत बड़ा फैसला है, और कोई भी माँ इतना बड़ा काम नहीं कर सकती थी। एहान से तो नूरैना को शुरू दिन से ही दिली वाबस्तगी रही थी, क्योंकि वो माँ से बहुत अटैच था। यसाल को मालूम था ये बहुत बड़ा फैसला है, और क्योंकि वो माँ से बहुत ज़्यादा अटैच था। नहीं, हम इन्हें इहान नहीं देंगे। अगर ऐसा किया तो वो औलाद की कमी को महसूस नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कमी को नहीं समझ सकेंगे। ये साल को पहली बार अपनी बीवी की बातें काफ़ी मुतासिर कुन लगी थी। तो फिर मेरी जान क्या करना चाहती है? बस आप देखते जाएं, इनके दरमियान की सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, और इनकी अपनी औलाद भी होगी। एहान और एहाम वैसे भी जितने मेरे बच्चे हैं इतने ही रमला के भी हैं, मगर जो सुख अपनी औलाद का है इसे वो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। यसाल आगा शाह ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी चूमते इसे सीने से लगाया था। इस बंदर को दे आती मेरा लाडला, क्यों दे आई? खुद को घूरते एहाम को देख यसाल ने मुंह बिगाड़ते कहा था, और फिर एहाम को उठाते इसके गालों पर अपनी दाढ़ी रब की थी, जिस पर इसका रोना एक बार फिर से शुरू हो चुका था। इसकी आंख अचानक खुली थी। सारी रात ठीक से ना सो पाने की सबब अभी जिस्म में अकड़न सी थी। आंखें खोलते इसने कसमसाते हुए सामने की सिम देखा, जब अचानक ही अपने सीने और पेट पर वजन सा महसूस करते इसने सर झुकाया था। नजरें अपने सीने से लिपटी रमला आलम शाह पर पड़ी थीं, जो बिसाम के सीने पर लेटी एहान आगा शाह एहान आगा शाह के ऊपर से हाथ ले जाते बिसाम के पेट पर रखे हुए थी। बिसाम यक तक सांस रोके इसे देख रहा था, जिसके शफाफ चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। एक अरसे के बाद वो इसके करीब थी। रमला की छोटी छोटी सांसें बिसाम रजा की गर्दन में जज्ब हो रही थीं। बेख्तियार इसका हाथ बढ़ा था। वो नरमी से इसके बाल चेहरे से हटाते इसके चेहरे पर झुका था, जब अचानक रहबर शाह के अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे। इस दिन जो कुछ भी हुआ वो रमला की वजह से हुआ था। इसकी भाभी अगर इस दुनिया में नहीं रही थी तो इसकी कसूरवार कहीं ना कहीं रमला थी। ये सब बातें एक बार फिर से मुकाबिल के दिल को जकड़ चुकी थीं। एहान पर निगाह पड़ते ही वो एक बार फिर से नॉर्मल हुआ था। रात को इसने काफ़ी तंग किया था इन दोनों को, जिस वजह से रमला और बिसाम इसे वापस नूर के पास लेकर गए थे, मगर काफ़ी बार भी दरवाज़ा नॉक करने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला था, जिस वजह से वो एहान को वापस ले गए थे। रमला को नरमी से अपने सीने से हटाते वो इसका सर बिस्तर पर रखते उठा था। एहान को आहिस्तगी से गोद में भरते वो इसके गाल चूमते कमरे से निकल आया था। सामने ही नूर आयना कमरे से बाहर टहल रही थी। भाभी, आपका बेटा। बिसाम इसे देखकर शाइस्तगी से कहते एहान नूर को दे गया था। नूर ने तेज़ी से एहान को सीने से लगाया। इसके चेहरे को चूमते वो इसे सीने से लगा गई थी। इसने तंग तो नहीं किया आपको? एहान माँ की गोद में जाते ही नींद से बेदार हुआ था। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिसाम के मुंह से न चाहते हुए भी यही अल्फाज निकले थे। नूर इसका शुक्रिया अदा करते एहान को उठाए वहाँ से जा चुकी थी, जबकि बिसाम कई लम्हे वहीं खड़ा रहा। चंद घंटों इस मासूम बच्चे के साथ गुजारने के बाद अब इसका जाना इसे बुरा लग रहा था। वो अपनी कैफियत पर शदीद
बेजार हुआ था। सर झटकते वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, रमला को पागलों की तरह बेड के नीचे झांकते पाया। क्या हुआ, क्या तलाश रही हो, जाने किस एहसास के तहत इसने पूछा था, वरना वो इसे बिल्कुल इग्नोर कर देता था। रमला उलझन और परेशानी से मुड़ी। एहान नहीं मिल रहा विसाम, इसे देख रही हूँ, कहीं वो गिर तो नहीं गया। रमला के चेहरे से ज़्यादा इसकी आवाज़ में खौफ था। विसाम इसे देख कर रह गया। अपने आप पर काबू पाते वो आगे बढ़ा था। मैं इसे वापस ले आया हूँ भाभी को, वो लापरवाही से बोलता अपना यूनिफॉर्म निकालने लगा। रमला एकदम से उठी थी, सब आंखों में हैरत सी उमड़ी। मगर क्यों दे आए, वो तो सो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोया था वो। विसाम के हाथ एक पल को थमे। इसे ये समझने में कुछ ही सेकंड लगे थे कि इसकी बीवी ज़रूरत से ज़्यादा इस बच्चे से अटैच हो रही थी। ज़ाहिर है वो कल रात से यहाँ है, अपनी माँ से दूर, वापस तो देना ही था इसे। इसने हत्तुल-इम्कान तौर पर अपना लहजा नॉर्मल रखा था और इसकी बात सुनती वो सब्ज़ भीगी आंखों को रगड़ते वॉशरूम में बंद हुई थी। इसके गुस्से की शिद्दत वॉशरूम के बंद होते दरवाजे से लगाई जा सकती थी। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ रमला और बिसाम रज़ा की अटैचमेंट बढ़ती जा रही थी। कभी एहान आगशा दिन को इनके पास होता था तो कभी रात को। एहान की मौजूदगी में वो पहले जैसे नॉर्मल रहते थे। एक दूसरे को वक्त देना तो इनके लिए अहम नहीं रहा था, मगर एहान को एक साथ वक्त देना वो दोनों अपना फ़र्ज समझते थे। अब भी एहान बिसाम की गोद में खेल रहा था, जबकि एहाम अपनी पुप्पो की गोद में था। बेटा, ऐसी हालत में बार बार सफ़र मत किया करो, कुछ भी हो सकता है, महमल ने इसे फिर से समझाना चाहा था, जो हर दूसरे दिन ईसा खान को साथ लिए हवेली पहुंची होती थी। मामा, आप जानती हैं मेरा दिल नहीं लगता इन दोनों के बगैर, और वैसे भी आप देखें तो इहाम को मेरे सिवा कोई पसंद नहीं है। अगर मैं ना आऊँ तो भी ये बीमार पड़ जाता है। माही ने अपनी गोद में लेटे इहाम को के गाल चूमते कहा था, ये तो है बेटा कि ये अटैच है तुमसे, मगर ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे ना आने पर बीमार पड़ जाए। इसकी तो अपने बाप से भी कम बनती है। महमल ने तो सही की महमल ने तौसी की थी और इस बात पर ईसा खान समेत सब ने बमुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। माही, चलो, अब हमें अभी डॉक्टर के पास भी जाना है। ईसा खान ने गला खंगारते हुए इसे पुकारा था, जो सबकी मौजूदगी में इसे इग्नोर कर रही थी। ओके खान, चलें। वो पहले की बरक्स आज शराफत से मान गई थी, क्योंकि ईसा खान ने इसे धमकी दी थी कि अगर इसने ज़िद की तो वो आगे से इसे नहीं लेकर जाएगा। माही वहाँ नहीं थी। इसे ना पाते इसने हैरत से पूछा, बेटा, वो दोनों जा चुके हैं, तुम यहाँ आओ, पहले ही तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी। रूप इसका हाथ पकड़ते इसे पास बिठाते इसकी पेशानी चूमते बोली थी, जो बुखार से तप रही थी, कुछ नहीं मामा, बस बाहर सर्दी बढ़ रही है, शायद इसलिए होगा। वो लापरवाही से कंधे उचका कर कहते उठी थी। बिसाम की गोद से एहान को लिया तो इसके हाथ बिसाम रज़ा के कंधों से टच हुए थे। बिसाम चौंक सा गया। वो बुखार में फूंक रही थी और अब इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आंटी, आप इसे रूम में ले जाएं, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, बिसाम ने उजलत में कहते मोबाइल फ़ोन निकाला। कोई ज़रूरत नहीं, बुखार ही है, मर नहीं जाऊँगी, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रमला ने दो टोक जवाब पर वो लब भींच कर रह गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माँ, ये साल आगा शाह वहाँ आया था। इसकी पुरजोश आवाज़ पर सब ने मुड़ते इसे देखा था, साथ ही सलाम का जवाब भी दिया था। कैसे हैं मेरे बच्चे? वो बैग रखते एहाम और एहान को एक साथ उठाते प्यार करने लगा। बिसाम रज़ा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा था। कितना खूबसूरत था ये मंजर। वो नज़र भर कर देखे बिना माशाल्लाह कह उठा, एक सरप्राइज़ है मॉम और पुप्पो। वो महमल और रूप की पेशानी चूमते इन दोनों के दरमियान बैठ गया। अच्छा जी, कैसा सरप्राइज़? महमल ने तजस्सुस से पूछा, साथ ही इसके बाल संवारे थे। आपके पोतों के नाम पूरे पर न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ मैं, और फाइनली सब कुछ हो चुका है। और कल सुबह पहली फ़्लाइट से मैमून और एहान और एहाम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। इसने महमल और रूप के बाद नूर को देखा था, वो सभी इस प्लान से वाकिफ़ थीं और ये भी जानती थी कि इस रेस्टोरेंट में तीसरा हिस्सा वो रमला और माहरूफ के नाम कर चुका था, जो इनके आने वाले बेबीज़ के नाम पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होने थे।
جبکہ ایک حصہ ساحر خان کی پرنسس کے نام تھا جو اسے گلرخ کو اس کی پہلی سالگرہ پر دیا جانے والا تھا۔ ماشاءاللہ میرے بچے بہت بہت مبارک ہو۔ محمل اور روپ نے اس کی بلائیں لی تھی، اسے ڈھیروں نیک دعاؤں سے نوازتے وہ باورچی خانے میں اپنا معمول کا کام دیکھنے لگی، جبکہ مون اور یسال اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ رملہ اور بسام رضا خالی ہاتھ وہاں بیٹھے اپنے پیروں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح ہی کیس کے لیے نکلتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ رات کے 12 بجے بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر آیا تھا۔ اب بھی اسے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ شہر میں دنگا فساد ہونے کے سبب وہ پچھلے کئی دنوں سے نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ آج 3 راتیں جاگ کر گزارنے کے بعد اسے مہلت ملی تھی کہ وہ واپس گھر جاتا۔ کال کٹ ہونے پر اسکرین پر ایک تصویر جگمگائی تھی جو رملہ اور ایہان کی تھی۔ تصویر میں وہ دونوں ایک دوسرے کو سینے سے لگائے سو رہے تھے۔ گاڑی رکنے پر اس کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ جواد، ایسا کرو تم سرونٹ کوارٹر میں سو جاؤ، باہر بارش کا زور کافی ہے، تم گھر نہیں پہنچ سکو گے۔ جیپ سے نکلتے اس نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا جو سر اس بات میں ہلاتے اترا تھا۔ حویلی کے اندر پہنچنے تک وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے وہ شرٹ جھاڑتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ رات کے اس پہر ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، مگر اندر قدم رکھتے ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ پورا کمرہ بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ وہ پاؤں احتیاط سے اٹھاتے آگے بڑھا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر رملہ کا موبائل فون پڑا تھا جہاں ایہان کی ویڈیو چل رہی تھی۔ بسام نے اسے دیکھتے ہی لب بھینچے تھے، یقیناً وہ ایہان کو مس کر رہی تھی۔ اب اس کے جانے پر وہ یوں کمرے کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ بسام نے موبائل فون آف کرتے میز پر رکھا، اپنے شوز اتارتے وہ شرٹ اتار کر سر کو تولیے سے خشک کرتا واش روم کی طرف بڑھا۔ رملہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ اس ٹائم وہ روم سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ رملہ! بسام نے تولیہ ایک سمت رکھتے اسے پکارا تھا۔ اسٹڈی روم چیک کرتے وہ باہر نکلا، کچن اور ہال میں بھی اسے وہ نہیں ملی تھی۔ وہ پریشان سا واپس لوٹ آیا تھا۔ آخر کہاں جا سکتی تھی وہ؟ اس کا موبائل فون بھی روم میں تھا۔ اچانک اس کی نگاہ بالکنی کے کھلے دروازے پر پڑی۔ بسام لب سختی سے بھینچے اس سمت بڑھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ رملہ بسام رضا فرش پر اوندھے منہ پڑی نہ جانے کتنے گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ رملہ! بسام اسے بازو کے گھیرے میں لیتے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے چیخا تھا۔ رملہ کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا، ہونٹ بے تحاشا نیلے پڑ رہے تھے، گردن کی نیلی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ بسام اس کی حالت دیکھ ایک پل کو سکتے میں چلا گیا تھا۔ اس کی سانسیں بے حد مدھم تھیں، نہ جانے وہ کب کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ رملہ! اسے کھونے کا خوف بسام رضا کے جسم سے روح کھینچنے لگا تھا۔ وہ سرمئی خوفزدہ نظروں سے اپنی باہوں میں سمٹی اپنی متاع حیات کو دیکھتا ایک دم سے اٹھا تھا۔ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آئی تھی۔ وہ بیڈ پر اسے لٹاتے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہا تھا، کبھی اسے مصنوعی سانسیں دینے لگتا تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں کی مساج کرتا۔ بارش کے ساتھ ساتھ کئی آنسو کبھی اس کے ہاتھوں کی مساج کرتا۔ رملہ، آنکھیں کھولو پلیز، میری طرف دیکھو۔ وہ اسے پکار رہا تھا، مگر آج اس کی ایک بھی پکار کا وہ جواب نہیں دے رہی تھی، اور آج بسام رضا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتے اٹھا تھا۔ دروازہ لاک کرتے وہ اس کے نزدیک جھکا، اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اگر تم ضدی ہو تو میں بھی تمہارا بسام ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے مجھے چھوڑ کر جاتی ہو۔ تکیے پر اس کے چہرے کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ سر میں شدید درد کے سبب اس کی آنکھ اچانک سے کھلی تھی۔ بال سمیٹتے اس نے گردن اٹھائے سامنے کی سمت دیکھا تھا۔ بسام رضا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں رت جگہ کی گہری سرخی تھی، جیسے وہ ساری رات سکون سے سویا نہ ہو۔ کیا ضرورت تھی مجھے بچانے کی؟ رملہ کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ بسام رضا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بدن پر مقابل کی شرٹ دیکھ گال ایک دم سے دہک اٹھے تھے، مگر اتنے مہینوں کا غصہ ناراضگی تھی جو اس کے ذرا سا قریب آتے ہی جاگ چکی تھی۔ تمہیں مرنا ہی ہے تو میں ہوں نا تمہیں مارنے کے لیے، یوں بے بنیاد کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اسے کلائی سے جکڑتے وہ ایک جھٹکے سے کھینچ چکا تھا۔ اس کے رد عمل پر رملہ کی سرخ آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ مار تو آپ چکے ہیں مجھے، اب تو بس زندہ لاش ہی بچی ہے۔ مقابل کی جذبے لٹاتی نرم گرم بے
बेकरार निगाहें रमला का लहजा भिगो गई थीं। क्या माफ़ी नहीं मिल सकती मुझे? वो करवट बदलते इस पर हावी हुआ था। पेशानी रमला की पेशानी से टिकाए शिद्दत खेज लहजे में पूछा था। इसका एक जुमला न जाने कितने खसारे याद दिला गया था रमला को। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते बहते जा रहे थे। आप मर्द हैं बिसाम, और मर्द सिर्फ अना जताते अच्छे लगते हैं, औरत से माफ़ी मांगते वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो भीगी आंखों से इसे देखते लरसते हुए लहजे में बोली थी। बिसाम लब भींचे इसे देख रहा था। अना नहीं, सिर्फ गुस्सा था, मैं तुमसे, या शायद खुद से, वो कहते हुए नजरें चुरा गया। गुस्से में आप मुझे अजियत देते रहे विसाम। मैं जब जब आपकी तरफ झुकी आपने इतनी ही बेदर्दी से मुझे तोड़ा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं रमला, खुद को भी तो अजियत दी है। इसके आंसू अपने लबों से चुनते वो बेखुद होते बोला था। सांसें रमला की नज़दीकी पर गहरी होने लगीं। इसका हाथ मजबूती से रमला की नाजुक कमर के गिर्द लिपटा था, जिसे महसूस करते रमला एकदम से बिदकी। वो सुर्ख नज़रों से इसे देखती गहरी सांसें भर रही थी, जबकि बिसाम रज़ा इसके चेहरे पर अपनी गुर्बत के ढेरों रंग देखता बहकने लगा था। इसके होंठ हदूद से तजावज़ करते जा रहे थे। विसाम, नहीं, बस कर दें, मैं बार बार आपकी मेहरबानियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके सीने पर अपने कपकपाते हाथ रखते वो आंसुओं की आमेजिश से भरे लहजे में बोली थी। आदत डाल लो रमला बिसाम रज़ा, अब से ये मेहरबानियाँ तुम पर रोज़ हुआ करेंगी। वो इसके कान के नज़दीक झुकते सरगोशी नुमा अंदाज में बोलते इसे सीने में मजबूती से भींच गया। क्या चाहिए तुम दोनों को भूतों? वो थक हार कर सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठते बेबसी से बोला था। नूर आयना की थोड़ी देर पहले की आंख लगी थी, जब अचानक वो दोनों एक साथ रोने लगे थे। यसाल दोनों को उठाए बाहर ले आया। अब काफ़ी देर से दोनों को चुप करवाने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। वो दोनों वक्फे वक्फे से रो रहे थे, कभी एक रोता था तो कभी दूसरा। दूध पियोगे? माथे पर बल डाले वो दोनों को एक एक निगाह देखते इस्तफामिया अंदाज में बोला। एहान खामोश निगाहों से बाप को देख रहा था, जबकि एहाम खिलखिलाया था। इसके अंदाज पर यह साल बुरी तरह से सुलगा था। न्यूयॉर्क में आए इन्हें चंद दिन हुए थे, अगले हफ्ते इनकी वापसी थी। वो गहरी सांस भरते उठा था। दोनों के मुंह में फीडर डालते वो दरवाजे की सिमत बढ़ा, क्योंकि दरवाजे पर कोई आया था। जी। दरवाज़ा खोलते ही इसने हैरत से सामने खड़ी लड़की को देखा, जो यकटक इसे ही देख रही थी। वो मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखते इसने हाथ में पकड़ा मग यसाल की तरफ बढ़ाते अपनी ज़ुबान में कहा। यसाल इसे रास्ता देते अंदर दाखिल हुआ। यहाँ पर हर चीज़ मैसर थी, और लोग एक दूसरे से कुछ भी लेना मुनासिब नहीं समझते थे। ऐसे में वहाँ की रिहायशी लड़की का यूँ इससे दूध मांगना इसे अजीब ज़रूर लगा था। या या याले यकटक इसे देख रही थी, जो बेहद खूबसूरत था। इसका डिंपल देखने की चाह में वो आज बहाने से इसके घर आई थी। वो कई बार यसाल और नूर को आते जाते देख चुकी थी। जाने कब यसाल आगा शाह इसे अच्छा लगने लगा था, वो खुद भी नहीं जानती थी। वो आगे बढ़ी तो सामने ही कोर्ट में एहाम और एहान को पाया। वो पहली बार इन बेबीज़ को देख रही थी, जो बिल्कुल यसाल जैसे थे। वो आगे बढ़ी, इन दोनों से लाड करने लगी। ये कितने प्यारे हैं, वो मुस्कुरा कर बोली थी। थैंक्स। यसाल इसकी तारीफ़ पर मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करने लगा। ये आपकी सिस्टर के बेबीज़ हैं? वो नूर को इसकी बहन समझ रही थी। यसाल मुस्कुराया। नहीं, ये मेरे बेबीज़ हैं, और जिसे आप मेरी सिस्टर कह रही हैं वो मेरी वाइफ़ है। पैंट की पॉकेट्स में हाथ फंसाए वो शरीर लहजे में बोला। तो याले का रंग फक पड़ा। क्या आप ठीक हैं? इसने चौंक कर इस लड़की से पूछा, जो काफ़ी खामोश थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दूध का बाउल लेते वहाँ से जा चुकी थी। कौन था ये साल? नूर बाल समेटते बाहर आई थी। दरवाज़ा के से बाहर निकलती याले की पुश्त को इसने हैरानगी से देखा। मुझे लगता है तुम्हारे बेटों की आशिक थी कोई, दूध के बहाने से आई थी। कौन था दूध के बहाने से आई थी? यसाल आकाशा इसके गालों पर लम्स छोड़ते मोहब्बत से बोला था। इसे नरमी से सीने से लगाए इसने बेटों के सुर्ख चेहरे को देखा, जो बाप को गुस्से से घूर रहे थे। 1 माह बाद। कैसी लग रही हूँ मैं? अपनी चूड़ियों और गजरों से सजे हाथ जरकान खान के हाथों में थमाते वो बड़े अंदाज में बोली। जरकान खान के दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। आंखें सामने खड़ी खूबसूरत अप्सरा पर टिकी थीं, जो आज बिल आखिर इसके नाम हो चुकी थी। एकदम
ہاٹ پٹاخہ لگ رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بے باک سی تعریف پر حرم کی آنکھیں لرزیں، گال ایک دم سے لال کندھاری ہو گئے تھے۔ اس نے یکدم سے ہاتھ کھینچے جس پر زرکان خان کی گرفت اور بھی سخت پڑی تھی۔ اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا حرم زرکان خان کہ تم اپنے ہاتھ مجھ سے چھڑواؤ۔ وہ اسے سینے میں بھینچتے شدت خیز انداز میں بولا تھا۔ اب تمہیں کوئی حق نہیں شدت خیز انداز میں بولا تھا۔ حرم کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں اسے بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ دل 200 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے صرف سینے سے لگایا ہے تو تمہارا یہ حال ہے مسز۔ سوچو جب میں حساب بے باک کرنے پر آیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس کی آواز روبدار اور بھاری ہو چکی تھی۔ ہاتھوں کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ حرم کو اپنا سانس رکتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی رخصتی تھی۔ فنکشن سادگی سے کیا گیا تھا کیونکہ 2 دن کے بعد ان دونوں کی فلائٹ تھی۔ کیونکہ زرکان خان اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا اور اس کی خواہش کے مطابق حرم بھی اس کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، اس نے گہری سانسوں کے بیچ کہا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، بہت بہادر ہو تم، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہی بہادری آج تم ہماری ویڈنگ نائٹ پر دکھاؤ۔ یقین جانو بہت یادگار ہو جائے گی یہ رات۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ اس کی خوشبو انہیل کرتے اس قدر بے باکی سے بولا تھا کہ حرم کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہو گئیں۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ باہر آ جاؤ دلہے راجا، ابھی رخصتی ہونا باقی ہے۔ زحلے کی چہکتی آواز پر زرکان خان نے منہ بگاڑا تھا جبکہ حرم نے اپنی اٹکی ہوئی سانسیں بحال کیں۔ اس کے روم سے نکلتے ہی وہ کرسی پر بیٹھی گہری سانس بھرنے لگی۔ اوکے اوکے یہ رائٹر، میں یہ ویسے سوچ ہی رہی تھی کہ مہروش کا کوئی بھی پارٹ نہیں آیا ہے ابھی، اینڈنگ کے دوران کچھ تو پتہ لگے کہ کیا بنا ہے اس کے ساتھ، بٹ وہ آئی تھنک انہوں نے کسی اور ناول میں اس کی سٹوری آگے سے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے قصہ عشق ناول۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کمنٹس میں تو میں وہ ناول بھی سٹارٹ کر دوں گی۔ اب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قصہ عشق پڑھیں تو ہم ضرور پڑھیں گے۔ بس ابھی اور نہیں کھانا کچھ بھی۔ اس کی گود میں پڑی گول گپوں کی پلیٹ اٹھا کر میز پر رکھتے عیسیٰ خان نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ وہ کب سے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر تھوڑی دیر میں وہ کچھ نہ کچھ کھا ہی رہی تھی۔ ماہی نے بھیگی نیلی آنکھوں سے اسے گھورا تھا جو کمر پر ہاتھ ٹکائے اسکائی بلو کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں کھا سکتی میں؟ وہ ڈٹائی سے کہتے میز پر ہاتھ رکھتے اٹھی تھی۔ کیونکہ یہ سب ہمارے بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یوں سینے پر ہاتھ جمائے پوچھتی سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ آسمانی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ میچنگ شال شانوں پر بکھیرے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ محمل اور گلمین خان اس کی کئی بار نظر اتار چکی تھیں۔ آپ کو کیسے پتا یہ سب ہمارے بیبی کے لیے ٹھیک نہیں؟ کیا بیبی نے خود بول کر بتایا آپ کو؟ تھوڑی پر انگلی جمائے وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی اور اس کے انداز پر عیسیٰ خان نے کے گداز لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ عیسیٰ ایسا ہی سمجھ لو میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ اس کے گال پر جھکتے لب رکھ گیا تھا اور اس کے اتنے سے عمل پر محروق آغا شاہ کی زبان تالو سے جا لگی تھی۔ مجھے مٹھائی کھانی ہے عیسیٰ خان، وہ اس کا دھیان بھٹکانے کو بولی جو اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ چکا تھا۔ وہ بھی کھلا دیتے ہیں اپنی خانم کو۔ اس کے ہونٹ اب محروق آغا شاہ کی ہتھیلیوں پر تھے۔ وہ اکثر اس کے ہاتھوں کو یوں ہی وارفتگی سے چومتا تھا۔ ویسے کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ میری شادی آپ جیسے سڑے انسان سے ہوئی۔ آپ مجھے نکاح سے پہلے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ اس لیے عیسیٰ خان کا پیار ہجوم کے باوجود بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بات تو ماروق کی اسے سچ لگی تھی۔ وہ خود بھی ماروق کو بڑا بورنگ انسان سمجھتا تھا مگر دل نے ایسا پھنسایا تھا کہ اب وہ لڑکی اس کی روح کا سکون بن چکی تھی۔ اسٹرا تو میں بالکل بھی نہیں ہوں میری جان،
سڑا تو میں بالکل بھی نہیں ہوں میری جان، اور اس بات کا ثبوت تو میں روز دیتا ہوں تمہیں۔ اور رہی بات اچھا لگنے کی، تو نکاح کے رشتے میں گواہان سے زیادہ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس لیے یہ رشتہ اتنا خاص اور پیارا ہے۔ اس رشتے میں تو اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ پھر میاں بیوی کا ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا ممکن ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ممکن ہی نہیں ہو گیا۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے بڑی خوبصورتی سے نرمی سے بول رہا تھا، اور ماہروخ آقا شاہ بڑی دلجمی سے اسے سن رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے یک ٹک خود کو دیکھتا پاتے وہ مسکراتے ہوئے بولا، دیکھ رہی ہوں کہ آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ اتنے بھی بورنگ انسان نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہتے ساتھ ہی کہکہا لگا اٹھی تھی، اور اس کے پرجوش سے کہکہے کافی دیر تک فضا میں گونجتے رہے تھے۔ بالکل مجھ پر گیا ہے میرا شیر۔ ہاں، آغا شاہ کے گال چومتے محمل مسکراتے ہوئے بولی تھی، جسے دادی کی کمپنی پسند آ رہی تھی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر سیاہ واسکٹ پہنے وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ بڑی سنجیدگی سے محمل کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ریحان آغا شاہ دادا کی گود میں تھا اور کافی مسکرا کر رسال آغا شاہ سے باتیں کر رہا تھا۔ ریحان کی یہ عادت بہت پیاری تھی کہ وہ سب کے پاس چلا جاتا تھا، جبکہ ایہام کو صرف ماں کی گود چاہیے ہوتی تھی۔ بابا، آپ اسے مجھے دے دیں۔ رملہ سب سے مل کر بھاگی آئی تھی۔ اس کا دھیان ایہان کی طرف ہی تھا، مگر سب سے ملنا بھی ضروری تھا۔ ایہان کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بڑھتی جا رہی تھی، اب بھی اسے اٹھاتے ہی وہ اپنی بوجھل طبیعت کے بارے میں بھول چکی تھی۔ رملہ، چلو، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ بسام اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا۔ اس کی طبیعت صبح سے خراب تھی، اور پھر بھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ بسام، ابھی ٹھیک ہوں میں، آپ پریشان نہ ہوں، رملہ نے مصروف سے انداز میں کہا تھا، جس پر بسام نے لب بھیج ڈالے تھے۔ بیٹا جاؤ دوائی لے آؤ، ورنہ زیادہ بخار ہو جائے گا۔ بدر عالم شاہ، جو کب سے رملہ کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پچھلے ایک ماہ سے بسام کے بدلے رویے کے سبب وہ بے حد خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ روپ نے تو باقاعدہ نور کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کی کوشش کی وجہ سے آج بسام اور رملہ پھر سے ایک ساتھ خوش اور آباد تھے۔ مگر مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، وہ منہ بسور کر بولی، جس پر بسام نے اس کی گود میں موجود ایہان کو لیا۔ اس کے گال پیار سے چومتے وہ اسے اسال کو واپس تھما گیا تھا، اور خود رملہ کا ہاتھ پکڑتے سب کو الوداع کرتے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چادر سنبھالو خانم، وہ ایک کونے میں کھڑی گل رخ کو چپ کروا رہی تھی، جب اچانک کسی کی بھاری سرگوشی نما آواز اس کے کان کے نزدیک گونجی، جس پر زہلے نے ہڑبڑا کر رخ موڑا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب چادر اس کے سر سے سرکی تھی۔ وہ خان بس گل کو چپ کروا رہی تھی تو پتہ نہیں چلا۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی، مقابل کی زہر انگیز نگاہوں میں دیکھنا آج بھی ذیل خان کے بس میں نہیں تھا۔ اگر گل رو رہی ہے تو اسے ملازمہ کو دے دو، مگر ایک بات یاد رکھو ذیل خان، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہارے بدن کے کسی بھی حصے پر کسی مرد کی نظر پڑے۔ وہ اس کے نزدیک ہوتے تحکم اور جنون بھرے انداز میں بولا تھا۔ ذیل کی سانسیں سینے میں الجھی تھیں، مقابل کی پرفیوم کی تیز مہک اس کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ اچھا نا، آگے سے خیال رکھوں گی، وہ اس کی تپش زدہ نظروں سے خائف ہوتے بولی تھی، جس کے عنابی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ لکنگ گارجیس مائی لو، اس کے کان میں جھک کر سرگوشیانہ انداز میں کہتے اس نے نرمی سے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ گھر چلیں کیا؟ اس کا لہجہ بوجھل ہونے لگا تھا۔ اس کے بہکے سے انداز پر ذیل کا چہرہ ایک دم سے لہو چھلکانے لگا تھا، بدن پر کپکپاہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں ساحر؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی؟ اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو جکڑتے وہ گہری سانسیں بھرتے بولی تھی۔ گل رخ اب سو رہی تھی، جسے نرمی سے اس کی گود سے لیتے وہ اس کی کلائی جکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا، جبکہ ذیل خان اپنے سر پھرے خان کو پیچھے کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ساری دنیا بدل سکتی ہے، مگر ساحر خانزادہ کا اس کے لیے پاگل پن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے وہ مبہم سے انداز میں سر جھٹکتے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ یہ سال بچے تنگ کر رہے ہوں گے، کاجل سے لبریز اپنی سیاہ آنکھیں گھماتے وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ دونوں واش روم میں بند تھے، اور یہ سال آغا شاہ کی بے باکیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے مون،
वेलवेट के खूबसूरत सूट में वो सीधा इसके दिल में उतर रही थी। दुपट्टा जैसा नागाशाह ने अपनी गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। कैसा फैसला? वो दीवार से टेक लगाए बोली, यही कि मुझे अपनी प्रिंसेस चाहिए। वो अटल लहजे में बोला, सर फिर से इसकी गर्दन में छुपाया था, जबकि इसकी बात पर नूर की आंखें फैली। रहने दे यसाल आगा शाह, अभी मेरे बेटे बहुत छोटे हैं और आपका क्या पता आप कब फिर से मुझे छोड़कर भाग जाएं। वो इसे आज भी ताना देने से बाज नहीं आई थी। अब कहीं नहीं जाऊंगा बेबी, क्योंकि चंद घंटों के बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है। वो इंतहाई ढिठाई और बेबाकी से बोला था। नूर का चेहरा इसके गैर मुतवक्का जवाब पर सुर्ख पड़ चुका था। इंतहाई बेशर्म इंसान हो तुम। वो इसके बाजू पर मुक्का मारते तासुफ से बोली थी, तकलीफ़ के लिए शुक्रिया मेरी जान। अभी कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ और कॉपरेट करो मेरी माई लव, क्योंकि बाहर तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं और यहाँ तुम्हारा छोटा सा हसीन शौहर। नीली पुरकशिश निगाहों से इसे देखते वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, जबकि नूर आयना बेबसी से इसे देखते सर सांस भरते रह गई थी। वो सुन सी बैठी थी, हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। पिछले आधे घंटे से वो एक भी लफ्ज़ नहीं बोली थी। सब आंखें सामने फर्श पर टिकी थीं, जबकि विसाम रज़ा, जो काफ़ी देर से इसे स्टिल देख रहा था, वो एकदम से उठकर इसके नज़दीक घुटनों के बल बैठा। पिछले एक माह से इनका रिश्ता ठीक हो गया था, मगर रमला का रवैया अब भी पहले जैसा नहीं हुआ था। वो इसे करीब आने से रोकती नहीं थी, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगी थी, मगर इनके रिश्ते का चार्म कहीं खो सा गया था। मैं जानता हूँ रमला, तुम अभी भी मुझसे खफा हो, मगर यकीन जानो मेरी जान, वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। वो गहरी सांस भरते बोला था। आज इसकी सुरमई आंखों में एक खौफ सा उतरा था। आई एम सॉरी माई लव, वो कान पकड़ते बच्चों के से अंदाज में बोला था। कहो तो पाँव पकड़ लूँ? वो अचानक से इसके पाँव की तरफ झुकने लगा, जिस पर बिदक कर इससे दूर होते रमला ने बेयकीनी से इसे देखा। पागल हो गए हैं आप क्या? ये क्या कर रहे हैं? वो चीखी थी इस पर, और इतने महीनों के बाद इसके अंदाज पर वो भीगी आंखों से मुस्कुराया था। मैंने माफ़ कर दिया था आपको बिसाम, बस दिल में एक डर था कि कहीं आप फिर से रूठ गए तो मेरा क्या होगा। वो भीगे लहजे में बोली थी। इसके आंसुओं पर वो तड़प उठा था। अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते वो इसे सीने से लगा गया था। मुझे डर लग रहा है बिसाम, क्या मैं इस बेबी की हिफाजत कर सकूंगी? वो अनजाने खौफ से बोली थी। बिसाम रज़ा ने इसका खूबसूरत चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। हम दोनों मिलकर अपने बेबी की हिफाजत करेंगे। खुदा ने हमें दूसरा मौका दिया है और इस बार हम खुदा के इस तोहफे को खोने नहीं देंगे। इसकी बात पर रमला ने सर इस बात में हिलाया था। वो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। वो तो दवा लेने गई थी डॉक्टर के पास। इसे क्या इल्म था कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए इसकी तबीयत बोझल सी थी। आप खुश हैं? आंसू साफ करते रमला ने इसे देखा था, जो अपनी बीवी के लिए रो रहा था। बेहद बेइंतहा शुक्रिया मेरी जान, हमारी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए। इसकी पेशानी चूमते वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला था, जबकि रमला आलम शाह ने आसूदगी से आंखें मूंद ली थीं। हर खौफ कहीं दूर जा सोया था। आज एक नई खुशी, एक नया उजाला लाई थी इनके लिए, जिसका रमला को बेसब्री से इंतज़ार था। दी एंड। ओके, तो एक्चुअली सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी हुआ। आई थिंक राइटर वाइंड अप करना चाह रही थी नावल। तो नावल वैसे तो बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। होप सो आप लोगों को भी पसंद आया हो। और अगर आप लोगों ने महरोश की स्टोरी वाला नावल पढ़ना चाहते हैं कि मैं रीड करूं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर वो नावल भी स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।